Hello my dear student. In this video we are going to see class 3rd Maths chapter 12 Can we share? Here one topic is given, how many in each group. Okay, this chapter is about division, dividing things and object. Here two groups are given. In one group, how many butterfly are given? We will count 1, 2, 3, 4 and 5. In second group, 1, 2, 3, 4 and 5. There are 10 butterfly. They are in two groups. There are 5 butterfly in each group. दोनों में 5 बटरफ्लाई है और टोटल 10 बटरफ्लाई है और 2 ग्रुप्स है. We will see our next topic. In next picture, caterpillars are given. In first leaf, we will count the caterpillars 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Total 7 caterpillars. Second leaf 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Third leaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, there are how many caterpillars? 7 plus 7 plus 7 is equal to, there are 21 caterpillars. Okay. In how many groups? 1, 2 and 3 groups. And how many caterpillar in each group? There are 7 caterpillars in each group. Here 7 is repeated in 3 group. Third one is laddu. There are 4 groups. How many groups? 1, 2, 3 and 4 groups. Each group has 3 laddus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 and 1, 2, 3. So there are how many laddu? So total 12 laddu. There are how many groups? 4 groups and there are 3 laddus in each group. Our next topic is draw 18 star. Put them into 2 equal group. आपको क्या करना है? What you have to do? 18 star को 2 group में divide करना है. Okay, तो वो हम कैसे करेंगे? This is all about division. तो 18 divided by 2. तो क्या आएगा? 2 का टेबल बोलेंगे. इसमें 18 आता हो, 9 नंबर पे 18 आता है, तो हम कितना बनाएंगे? 9 स्टार वी हैव टू मेक इन बोथ स्काई. ओके, तो वी विल मेक 9 स्टार इज हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Here also we have to make 9 star 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Children, आपको अगर डिवीज़न सीखना है, आपको डिवीज़न नहीं आता है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू डिवीज़न, तो मैं एक अलग से वीडियो डिवीज़न का आपको ज़रूर दिखाऊंगी. उसमें आपको डिवीज़न के बारे में पूरे बेसिक्स पता चल जाएंगे. ओके, तो हियर आंसर इज देयर आर 9 स्टार इन ईच ग्रुप. Now next is draw 18 beads. Put them into 3 equal part. तो 18 divided by 3. 3 equal part अगर हमको करने हो तो कितना लेना पड़ेगा हमको? 6. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. Okay. तो how many group we have to make? Beads 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो total 6 beads. Okay. Sharing the family.
If there are 60 banana and 2 monkey, how many will each monkey get? If there are 60 banana and 2 monkey, so 16 divided by 2 is equal to 30. Each monkey will get 30 banana. 5 friends found 5 rupees coin on the ground. They shared them equally. Each friend got 10 rupees. 5 friends, how many count? 50 divided by 5 is equal to 10. If there are 16 10 rupees notes and 4 friends to share, then 16 divided by 4. So 16 divided by 4, 4 fours are 16, or 4 multiplied by 10 is equal to 40. So each friend will get 40 rupees. 5 friends found 100 rupees. If they share it equally, how much each will get? So 100 divided by 5 is equal to 20. Hari Prasad has 30 meter of rope. हरि प्रसाद के पास 30 मीटर रोप है. He distributed equally among his 3 children. उसने 3 चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया. Each चिल्ड्रन गेस, तो 30 मीटर है रोप और 3 चिल्ड्रन है, तो 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10. If there is 36 meter of rope, how much of rope which each child get? अगर 36 मीटर रोप होती तो चाइल्ड 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 12. चिल्ड्रन में फिर से बोल रही हूँ, मेरा डिवीजन का वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको डिवीजन डायरेक्टली पता चले कि कैसे करना है. एंड इफ देयर इज 60 मीटर ऑफ रोप, हाउ मच ईच चाइल्ड विल गेट? अगर 60 मीटर रोप हो और 3 चिल्ड्रन हो तो 3 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 20 मीटर रोप. हाउ मेनी सेल्स? आई हैव 20 बुक्स. मेरे पास 20 बुक है. आई कैन कीप 5 बुक्स इन वन शेल्फ. उसको 5 बुक वन शेल्फ में रखनी है. सो हाउ मेनी शेल्फ डू आई नीड टू माई अलमीरा? तो पूछ रहा है कि मेरी अलमीरा में मेरे को कितने शेल्फ चाहिएंगे. 5 बुक्स. In the first shelf, 15 books are left. So children, 20 books put into equal part group of 5, each take 4 shelves. Okay. तो 5 books रखेंगे. 5 books in first shelf, तो 15 book are left. 5 more books in second shelf, तो 10 books are left. 5 more books in third shelf, तो 5 books are left. 5 books in fourth shelf, तो 20 books have filled up 4 shelves on the almirah. 20 books put into 4 equal part of the shelves. Now let's try this. Here are 28 buttons. कितने बटन है? 28 totals बटन है. A tailor puts 4 button on one shirt. So now there are 7 shirts with button. Okay, total buttons total shirts कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. If there are 28 button and tailor puts 7 button on each shirt, there will be 28 divided by 7 is equal to 4. Okay. So if there are 28 button and the tailor puts 7 button on each shirt, there will be 28 divided by 7 is equal to 4. 28 divided by 7 is equal to, the answer is 4. Now Minku puts her 15 laddu equally into 5 box. मिंकू ने क्या किया कि 15 लड्डू को इक्वली उसको 5 बॉक्स में रखना है. हाउ मेनी लड्डू विल देयर इन ईच बॉक्स? देयर विल बी 15 divided by 3, तो 5 3s are 15, तो 3 laddu in each box. If she uses only 3 box, how many laddu there will be in the each box? If she uses only 3 box, then there will be 15 divided by 3. तो 3 5s are 15, तो there will be 5 laddu in each box. Next topic is share 25 banana among 5 monkey. How many banana of each monkey? अगर हम 25 banana को 5 monkey में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5. ईच monkey has 5 bananas. Share 12 balloon among 3 boys. How many balloon each boys? 12 balloon है, 3 boys में आपको डिवाइड करना है. तो अगर 12 डिवाइडेड बाय हम 3 करेंगे तो टोटल आएगा 4. तो ईच बॉय हैज 4 balloons. Next topic is there are 21 candles. Put them equally into 3 boxes. How many candles are there in each box? So 21 divided by 3 is equal to 7.
नेक्स्ट टॉपिक इज देयर आर 18 सॉक्स. यहाँ पे 18 सॉक्स है. हाउ मेनी गर्ल कैन वियर दिस सॉक्स? तो वन गर्ल वियर 2 सॉक्स इन पेयर. टोटल सॉक्स कितने हैं? 18. टोटल नंबर ऑफ सॉक्स 18. ओके. तो टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 pair. So 9 pair of socks can be worn by 9 girls. Next topic is Raj has 36 minutes to make rotis. One roti takes 3 minutes. How many rotis can he make in this time? He can make 36 divided by 3 is equal to 12 rotis. Next is there are 24 foot marks of goats. So how many goats were there? How many foot marks are there? 24 foot marks. Okay. And how many groups are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So 24 foot marks were left by 6 goat. Okay. So 24 divided by 6 is equal to 4. Some girls are playing a game with both their hands. The girls who were playing 60 fingers altogether, how many fingers were playing in their games? तो each girl has 10 fingers. आप देखो एक गर्ल के एक हाथ में 5 फिंगर होते हैं, दो गर्ल हाथ में 50 फिंगर्स होते हैं. सो 16 फिंगर टोटल दिए गए हैं. तो 16 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 6 फिंगर्स. Lakshmi has 27 kg potato to sell. There 3 men came and bought equal amount of potato. लक्ष्मी के पास 27 kg पोटेटो थे. टोटल 3 men आए उसको लेने के लिए. तो 3 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 9 kg. Our next topic is jumpy animals. A frog jump 2 step a time. Frog क्या करता है? 2 step jump करता है. A squirrel jump 3 step. Squirrel क्या करती है? 3 step jump करती है. A rabbit jump 5 step. Rabbit 5 jump step करता है. A horse jumps 50 step. Horse 15 step jump करता है. A kangaroo jump 30 steps. Okay. Use the path on the next page to find out in how many jumps will frog reach. तो frog 3 डिवाइडेड बाय फ्रॉग कितना जंप करता है? 2 स्टेप जंप करता है. तो 3 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 15. 15 टू जा भी 13 होता है. इन हाउ मेनी जंप्स विल द स्क्वायरल रीच 27? तो 27 बाय डिवाइडेड बाय 3. स्क्वायरल 3 फुट जंप करती है. तो 3 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 9. देखो यहाँ पे पाथ दिया गया है ना, उस पाथ के हिसाब से आपको आंसर देना है. विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जंप? तो कंगारू कितना जंप करेगा? तो विच नंबर विल कंगारू रीच इन 2 जंप? तो कंगारू 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60 जंप. ओके. हु विल मीट एट द नंबर 15? हु विल मीट? कौन कौन मिलेगा 15 नंबर पे? 15 नंबर पे स्क्वायरल मिलेगी, रैबिट एंड हॉर्स. आप यहाँ से जंप करके दे सकते हैं कि जंप करके मैंने आपको पिछले लेसन्स में भी सिखाया है कि कैसे जंप करके आपको पाथ का पता लगाना है. तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि कौन कौन मिलेगा. विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18? नहीं, रैबिट नंबर 18 पे नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रैबिट अगर स्टार्ट करेगा यहाँ से तो 2 पे जा रहा है, तो रैबिट नंबर 18 पे नहीं आएगा. हाउ मेनी जम्प्स ऑफ द हॉर्स इक्वल 2 जम्प्स ऑफ द कंगारू? Okay, in the 2 jumps of a kangaroo reach, तो kangaroo how many jumps of rabbit? Rabbit equally rabbit का रह गया है हमारा. तो rabbit 15 divided by 5 is equal to 3. Okay. How many jumps of the horse equal to 2 jumps of the kangaroo? तो kangaroo 13 multiply by 2 is equal to आएगा 16. Which is the smallest number where the frog and squirrel meet? The smallest number of the squirrel, the smallest number is 2 multiplied by 3 is equal to 6 where frog and squirrel meet. frog और squirrel कौन कौन से पाथ पे मिले हैं आप इन पाथ को देखिए और 6 नंबर पे वो मिले होंगे. ओके. नेक्स्ट, हाउ क्विक यू आर? डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स ऑफ अ टेबल. देखिए 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9. तो 9 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 18 आएगा. यहाँ पे भी अगर 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा. आप डिवाइड भी कर सकते हैं. यहाँ पे देखो 16 डिवाइडेड बाय 2 दिया है. तो ओके, 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? तो 2 की टेबल में 16 कौन से नंबर पे आता है? तो 2 8 जा 16. तो यहाँ आएगा 8. 20 डिवाइडेड बाय 2.
तो 2 की टेबल में अगर आप देखें तो 10 नंबर पे 20 आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 7 और 2 लिखा है। अगर ये दोनों नंबर दिए हैं तो आपको सिर्फ इसको 7 2 ज़ा 14, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 2 ज़ा 14। यहाँ पे नंबर नहीं दिया है तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 10 दिया गया है, तो 2 5 ज़ा सॉरी 2 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया गया है, तो 4 कौन सी ऐसे टेबल में फोर्थ टाइम पे 8 आता है, तो वो है 2 की टेबल, तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखो 2 5 ज़ा अगेन 10 एंड 2 5 ज़ा इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट है डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 5। देखो 5 के ग्रुप में करना है, तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 ज़ा 10 होगा, है ना। 5 का टेबल बोलेंगे तो 5 2 ज़ा 10, तो 5 2 ज़ा इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 20 और 4 दिया गया है, तो 4 के टेबल में 20 कौन से नंबर पे आता है, तो आप देखेंगे तो 4 5 ज़ा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। 15 डिवाइडेड है 55 का टेबल बोलो, 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 नंबर पे आता है, तो 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे 40 दिया गया है, 8 दिया गया है, बराबर। तो कौन से टेबल में ऐसा है कि 8 नंबर पे 14 आता है, तो 5 8 ज़ा 40। आपको टेबल एकदम लर्न होंगे ना, तो ये सारे जवाब एकदम फटाफट निकलेंगे, जैसे मैं दे रही हूँ वैसे। 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, तो 5 का टेबल बोलेंगे तो 5 के टेबल में आता है 4 टाइम, ओके, तो 5 4 ज़ा 20। यहाँ पे 6 और 5 ये दोनों दिए गए, तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 30। अब ये 5 का टेबल बोलेंगे, 5 के टेबल में 25 कौन से नंबर पे आता है, 5 ज़ा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। ये दो नंबर दिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा, ओके। अब 5 का टेबल बोलेंगे 35, तो 7 5 7 ज़ा 35, अगेन 5 2 ज़ा 10, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट डिवाइडिंग इनटू ग्रुप ऑफ 10 यूजिंग 10 टाइम टेबल। अगर 10 टाइम टेबल का यूज़ करके हमको बनाना है ग्रुप, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 का टेबल बोलेंगे, 10 का टेबल बोलेंगे, तो 10 2 ज़ा 20, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20। 10 का टेबल बोलेंगे तो 10 के टेबल में 3 टाइम पे आता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। 10 के टेबल में 44 टाइम आता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40। हियर 5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50। यहाँ कुछ नहीं दिया गया है आपको, तो 4 नंबर पे 40 आता है, किसके टेबल में, 10 के टेबल में आता है 4 नंबर पे 40, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40। यहाँ पे 8 नंबर पे क्या आता है, तो 80 आता है 8 नंबर पे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 80। यहाँ पे देखो 5 और 10 दिया गया है, तो 5 नंबर पे क्या आता है, 50 आता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। 10 के टेबल में थर्ड नंबर पे 30 आता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे 10 के टेबल में 2 टाइम्स पे 20 आता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे 10 के टेबल में 60 कब आता है, 6 नंबर पे आता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 60। ट्राई दिस, ओके, हमको इसको ट्राई करना है। यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, तो 2 के टेबल में 4 कौन से टाइम पे आता है, तो 2 पे टाइम पे आता है, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब 7 का टेबल बोलेंगे, 7 के टेबल में 14 कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14। 3 के टेबल में 6 आता है 2 नंबर पे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 7 और 2 दिया गया है, बराबर, तो हम टेबल बोलेंगे, 7 2 ज़ा क्या होगा 14, तो यहाँ पे आएगा 14। आंसर क्या आएगा, 2 7 ज़ा 14। अगेन 2 3 ज़ा 6। जब भी आंसर दिया है तो आपको सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अगर आंसर नहीं दिया है तो टेबल बोलना है। 3 के टेबल में 15 कौन से टाइम पे आता है, 5 टाइम पे आता है, तो 5 3 ज़ा 15। 4 के टेबल में 8 2 टाइम पे आता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। 5 के टेबल में 15 3 टाइम पे आता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू
15। अब यहाँ पे 4 दिया गया है, 8 दिया गया है, तो हम क्या देखेंगे कि 4 नंबर पे 8 के 4 नंबर पे 8 कौन से टेबल में 4 नंबर पे आता है, तो 2 का टेबल बोलो आप, तो 2 के टेबल में 4 आता है 8 नंबर पे, जैसे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 16। नेक्स्ट वन है डिवाइड, फिर से टेबल बोलेंगे, 3 3 जा 9, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। 9 का टेबल बोलेंगे, 18 2 टाइम पे आता है, तो 9 2 जा 18। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो 5 2 जा क्या आएगा 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10। 5 का टेबल बोलेंगे जिसमें 24th टाइम पे आता है, तो 5 4 जा 20। 4 का टेबल बोलेंगे 12 थर्ड टाइम पे आता है, तो 4 3 जा 12। 4 का टेबल बोलेंगे 5 25 फिफ्थ टाइम पे आता है, तो 4 5 जा 20। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो 12 2 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है, तो 2 6 जा 12, तो यहाँ करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। Now our next topic is puzzle. Divide the clock face into 3 part. So the sum of the number is each part in the same. देखो आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो उन लोगों ने एक डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब हम दूसरा डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से होगा ये, और तीसरा डिवाइड करेंगे ये, तो हम इसको नाम दे सकते हैं पार्ट 1, ये है आपका पार्ट 2, और ये है आपका पार्ट 3। तो हमने 3 पार्ट में इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट 2 में कौन कौन से नंबर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, ओके। 11 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको प्लस करना है। सेकंड पार्ट में कितने नंबर है, 10 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4। थर्ड पार्ट में कितने नंबर हैं, 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5। यहाँ पे हम डाल देते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ओके। अगर इनको प्लस करेंगे तो इसका प्लस आएगा 26, इसका आएगा 26, इसका आएगा 26। बाय डिवाइडिंग द क्लॉक इन अबाउ पैटर्न वी गेट हुज नंबर इज सेम इन ईच पार्ट, इट कैन बी शोन एज फॉलो। तो आपको तीनों केस के क्या आ रहे हैं नंबर, 26 26 26। तो ये आपका डिवीजन का लेसन यहाँ पे फिनिश हुआ। आई होप चिल्ड्रन कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अलग से डिवीज़न देखना है तो मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें आपको डिवीज़न की पूरी बेसिक मेथड समझ में आ जाएगी, तो आप फटाफट ये जो स्मॉल बेसिक्स डिवीज़न है वो अच्छे से कर पाएंगे। और चिल्ड्रन आपको डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा टेबल्स एकदम बाय हार्ट आने चाहिए। अगर टेबल्स बाय हार्ट आते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय।